એક દેવધામમાં કંઈ અદ્ભુત થઈ રહ્યું હતું. કંઈક એવું જેને સદીઓ જૂની કહાનીઓને હકીકત બનાવી દીધી. આ કહાની છે ત્રેતાયુગના એક શિવધામની, મંદિરના એક બંધ ભોયરાની અને એક નાગસેનાની. મહિનાઓ પછી જ્યારે મંદિર ખુલ્યું ત્યારે તસવીરોએ સ્તબ્ધ કરી દીધા. ભોંયરાની અંદર શિવલિંગનો આકાર વધી ચૂક્યો હતો. એક ચમત્કારી પ્રકાશ નીકળી રહ્યો હતો અને નાગોની સેના રક્ષક બનીને મહાદેવના દરબારમાં હાજર હતી. આ બધું શું હતું? કેવી રીતે હતું? કોણ હતું? દરેક સવાલનો જવાબ માત્ર એક વ્યક્તિ જાણતો હતો. પણ ત્યાં સુધી પહોંચવું સરળ નહોતું. છતાં પણ અમે જઈશું, ઝરણાને પાર કરીશું, મંદિરની પડતાલ કરીશું અને શોધી લાવીશું કંઈક એવી તસવીરો, એક એવું સત્ય જે તમારા વિશ્વાસને હચમચાવી દેશે. મહાદેવ અને નાગ સાથે જોડાયેલા છે. ચમત્કારની કેટલીક કહાનીઓ તમે સાંભળી જ હશે, પરંતુ આજે જે કહાની અમે તમારી સમક્ષ લઈને આવ્યા છે એ કહાની અમે તમારી ખાસ કરીને તમને ચોંકાવી દેશે. આ કહાની ખૂબ જ ચોંકાવનારી છે. મધ્યપ્રદેશમાં એક મંદિર છે અને કહેવાય છે કે તે ત્રેતાયુગનું મંદિર છે. કહેવાય છે કે ત્યાં શિવલિંગને પૂજા કરવા માટે નાગ આવે છે. દાવા મુજબ રાતની આરતી મુજબ ગર્ભગૃહને બંધ કરી દેવામાં આવે છે અને ત્યારે કપાટ ખુલે છે ત્યારે નાગ શિવલિંગની સાથે લપેટાયેલા હોય છે. જેવા તમે કેલેન્ડર અને ધાર્મિક ટીવી સિરિયલોમાં જોયા હશે તેમ તે નાગ ક્યાંથી આવે છે અને ક્યાં જાય છે તેના વિશે કોઈ જાણતું નથી. यहाँ पर अब शाम ढल चुकी है, यानी कि वो वक्त जब मंदिर की आरती होने के बाद उसको बंद कर दिया जाएगा. અંધારું થતાં જ મંદિરમાં ઘંટારવ અને આરતી ગુંજવા માંડી. આરતી કરી રહેલા દરેકના ચહેરા પર ડરની ઝલક હતી. 3 बजे रात में भोर के वक्त इन दरवाजों को खोला जाएगा और उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, जो कुछ भी होगा वो आपकी आंखों के सामने होगा, आपको भी दिखाई देगा, हम भी देखेंगे. तो पुजारी जी ने पूरा देखिए दरवाजा बंद हो रहा है. तो ये बिल्कुल अब फाइनल मोमेंट्स हैं. શું આજે રાત્રે પણ મહાદેવના રક્ષક સાપ આ ધામમાં આવશે? શું સવારે નાગ દેવતા શિવલિંગ સાથે લપેટાયેલા જોવા મળશે? तो सुबह के 3:30 बज गए हैं. वो वक्त आ गया है जब हम इस मंदिर के कपाट को खोलेंगे. आइए पंडित जी खोलते हैं दरवाजा. કળયુગમાં પણ ચમત્કાર દેખાડવાના દાવાને લઈ આ કોયડાને ઉકેલવા માટે કહાનીને શરૂઆતથી સમજવી પડશે. જ્યારે મનમાં કેટલાય સવાલ લઈને અમારી ટીમ મહાદેવના ધામમાં પહોંચી, કેટલાય રહસ્યો ધરબીને બેઠેલું આ મંદિર અહીં ક્યારથી છે તે કોઈને નથી ખબર. લોકોએ જ્યારથી હોશ સંભાળ્યો આ મંદિરને જોતા આવ્યા છે, સમય સાથે રંગરૂપ બદલાતા રહ્યા, પણ ચમત્કારનો દાવો જે કાલે હતો તે આજે પણ છે. जब अपन जाते हैं जो गद्दी अपन लगाते हैं उनके विश्राम के लिए, तो जब पट खोलते हैं तो पूजा पाठ पुनः हुआ मिलता है. और कई बार तो ऐसा हुआ है कि स्वयं साक्षात भगवान और जो है तो सर्प देवता दर्शन भी दिए हैं. सांप दिखाई दिया है. और जैसे अपन दर्शन किए तैसे वो लापता हो जाते हैं. इतनी आबादी है चारों तरफ, सांप कहाँ से आ जाएगा? अंदर दम
एक किंवदंती ये भी मिली है कि जितना मंदिर आपको ऊपर दिखाई देता है उतना ही इसके नीचे भी मंदिर है और वहाँ भी गर्भगृह है, वहाँ भी मूर्ति स्थापित है। उसके जाने का रास्ता ये बताया जाता है। ये चबूतरा जो देख रहे हैं आप, इसमें टाइल्स लग गई, ये पूरा एक ही पत्थर है जिससे इसको ढका गया है। महाराजा गुलाब सिंह ने किसी समय पर इसको खुलवाने का प्रयास किया था, कुछ दूर तक खोली गई थी। सुरंग निकलने के बाद इसमें से विकराल रूप में भगवान भोलेनाथ के गण लोग निकलने लगे, तो फिर उसको बंद कर दिया गया। सर्प बिच्छू ये सारी चीज़ें निकल गई। માન્યતા મુજબ ચમત્કારની તસવીર કંઈક એવી છે કે મંદિરની નીચે ભોંયરું છે, જે એક પૌરાણિક શિવધામનું ગર્ભગૃહ છે। કહેવાય છે કે ત્યાં પારસ મણીથી બનેલું એક જૂનું શિવલિંગ છે, તેની રક્ષા નાગોની સેના કરે છે। તે ભોંયરામાંથી બહાર નીકળવા માટે એક સુરંગ છે, જ્યાંથી નાગ બહાર નીકળે છે। લોકો મુજબ આ જ તે જગ્યા છે જ્યાંથી સાપ નીકળે છે, પણ આજે અહીં ચબૂતરો છે। देखिए, इस मंदिर की सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे इंट्रीगिंग जगह अगर कोई है तो वो ये चबूतरा है। अब आपको स्टाइलों से ढका एक चबूतरा दिखाई दे रहा है तो आपको लगेगा कि आखिर क्या खास है इसके अंदर। हम जब यहाँ पर आए थे तो हमने सारे किस्से इसी जगह के बारे में सुने थे, क्योंकि मान्यता ये है कि यहाँ से एक रास्ता निकलता था जो अंदर जाता है। इस मंदिर के अंदर जो शिवलिंग है उसके नीचे एक और मंदिर है और उसमें एक पारस मणि से बना हुआ शिवलिंग मौजूद है। अब इस सारी कहानी का कोई सबूत किसी के पास नहीं है सिवाय इसके कि यहाँ पर कभी एक रास्ता हुआ करता था जो लोगों को पता है, जो अभी बंद करवाया गया। और बंद करवाने की वजह क्या थी? बंद करवाने की वजह ये थी कि यहाँ से सांप निकलते थे, बिच्छू निकलते थे, और एक दो नहीं सैकड़ों निकलते थे, चारों तरफ फैल जाते थे, वापस अंदर चले जाया करते थे। આજે તે ભોંયરામાં જતા બધા રસ્તા બંધ છે। સુરંગને પણ સિમેન્ટથી ભરી દેવામાં આવી। જ્યાંથી સાપ નીકળતા હતા ત્યાં ચબૂતરો બનાવી દેવામાં આવ્યો, પણ સાપનું નીકળવું બંધ નથી થયું। ક્યારેક શિવલિંગ તો ક્યારેક મંદિરમાં સાપ નીકળતા રહે છે। આ ધામમાં કેટલાક રહસ્યમયી સાપ શિવલિંગની પૂજા કરવા માટે આવે છે। આ પડતાલ તો અમારી ટીમ કરી લેશે, પણ ભોંયરાવાળી વાત કેટલી સાચી છે? ભોંયરાના સાપ પૂજા કરવા માટે બહાર કેમ આવે છે? લોકોએ કહ્યું કે ગર્ભગૃહને જરા ધ્યાનથી જુઓ, જવાબ આપમેળે મળી જશે। અંદરની તસવીર સાચે જ નવાઈ પમાડે તેવી હતી। पहली बार कोई गर्भगृह में 5-5 शिवलिंग एक साथे जोई रहा था। बधानो आकार अलग अलग हतो। कोई शिवलिंग मोटू हतु तो कोई नानु। लोकोना कहवा मुजब आ शिवलिंग स्वयंभू छे। आ मंदिरनी अंदरना भोंयरामांथी प्रगट थया छे। ये सारी मान्यताएं हैं, कोई सबूत नहीं है। अब इन सबूतों को नापना बड़ा मुश्किल है क्योंकि यहाँ पर कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। किसी ने पहले नाप के नहीं देखा कि कितना बड़ा था कितना नहीं, सब अंदाजे से बताते हैं। इसके बारे में बताया जाता है कि पहले यहाँ था 1 उंगली, फिर 2 उंगली हुआ, फिर एक बालिश हो गया, और अब ये पूरा 1.5-2 फीट के करीब हाइट निकल आई है। ये सारा तो बाद में कवर किया गया है, लेकिन पहले ये सिर्फ इतना सा जमीन पे उभरा था और उसके बाद से उभरते उभरते यहां तक पहुंच गया। तो इसी तरह से 1-2 नहीं बल्कि पूरे 5 शिवलिंग है इस मंदिर में। મંદિરમાં નાગ દેવતા આવે છે, તે શિવલિંગ સાથે લપેટાય છે। શિવલિંગ આપમેળે ધરતીમાંથી પ્રગટ થાય છે। એક સાથે આટલા બધા ચમત્કાર। હવે અમારું કુતૂહલ વધી રહ્યું હતું। પછી અમારી ટીમે મંદિરના સામેના કુંડ તરફ નજર દોડાવી, જેનો સંબંધ તે સાપવાળા ભોંયરા સાથે હતો। ગામના લોકો કહે છે કે તેને છાશવારે અહીં સાપ જોવા મળે છે। કારણ આ તળાવ નથી પણ તે ભોંયરું છે, જેનો એક રસ્તો એક કુંડ તરફ ખુલે છે। રસ્તો બંધ થઈ ગયો પણ નાગ અહીં આવતા રહે છે। इस इलाके का नाम देव तालाब इसलिए पड़ा क्योंकि इस मंदिर के चारों तरफ इसी तरह के पानी के कुंड हैं, तालाब हैं। अब मंदिर में तो 1-2 जगह ही, लेकिन
इस तालाब के आसपास तो हर जगह करीबन लोगों ने सांप देखने का दावा किया है। यहाँ पर भी लोगों ने सांप देखा है, यहाँ पर भी सांपों को देखने का दावा किया है और यहाँ पर भी सांपों को देखने का दावा किया जाता रहा है। जी हाँ, मतलब एक दो जगह नहीं, दसियों जगह ऐसी हैं इस तालाब के आसपास जहाँ पर लोग ये कहते हैं कि उन्होंने सांप को देखा। પહેલા તો અમને શંકા હતી, પણ ધામના મુખ્ય પૂજારી સાથે વાતચીત કર્યા બાદ વિશ્વાસ આવી ગયો કે ચમત્કારની બધી કહાની ઘડી કાઢેલી છે। અમે આવું કેમ કહી રહ્યા છીએ તે તમે સાંભળો। जितना मंदिर ऊपर है उतना मंदिर नीचे है। हाँ। उस मंदिर के द्वार में वहाँ जो सर्प इस मंदिर में रहते हैं वो सर्प 5 फन के हैं। 5 फन के हैं। के सांप हैं यहाँ पर। हाँ, और अच्छे लंबे ऊंचे मोटे। हाँ। वो शंकर जी को ऐसे कभी कभी छाप लेते हैं। अच्छा जी, आपने खुद देखा है? अपने आँख से देखे हैं। एक बार नहीं, कई बार। हम तो जब से आज हमको 21 साल हो गया यहाँ। हाँ। पर ये कोई मतलब ये नहीं है कि कब वो निकलते हैं, कब ऐसे करते हैं, कोई नहीं है। हाँ। जब ऐसे कभी कभी अचानक पड़ते हैं। સાંભળ્યું તમે? 5 ફેણવાળો સાપ, જે પૌરાણિક કહાનીઓમાં સંભળાવવામાં આવ્યો છે, તસવીરોમાં જોવા મળ્યો છે। આ લોકો કહે છે કે આ ચબૂતરાની નીચે જે ભોંયરું છે તેમાં 5 ફેણવાળો સાપ છે। એક ફેણવાળો સાપ પણ જોવા મળી જાય તો માની જઈશું, પણ અમને ખબર હતી કે આવું કશું નથી થવાનું। तो इस मंदिर की बहुत सारी कहानियां हमने सुनी थी, लेकिन उन कहानियों में कितनी हकीकत है ये कहना बहुत। अरे बाबा रे सांप! પણ આ શું? આ કેવી રીતે થઈ શકે? એક મોટો લાંબો કાળો એકદમ ભયાનક નાગ અમારી આંખોની સામે હતો, મંદિરના પ્રાંગણમાં હતો। मेरी तरफ घूम रहा भाई, कहां से आया ये? हटो हटो हटो, छोड़ो यार। कोई भ्रम नहीं, कोई शक्ति, कोई सवाल नहीं। સાપ અમારી સામે મંદિરના આંગણામાં સરકી રહ્યો હતો। શરૂઆતમાં દાવાને લઈને અમને થોડી શંકા હતી, પણ તે મંદિરમાં એક કોબરા સરકી રહ્યો હતો। એકદમ અમારી સામે તે સાપ ક્યાંથી આવ્યો હતો? શું મંદિરના ભોંયરામાંથી આવ્યો હતો કે મંદિરની બહારથી આવ્યો હતો? શું આ તે જ સાપ હતો જે શિવલિંગની પૂજામાં હતો? હવે આ બધા રહસ્યો ઉકેલવાનો સમય આવી ગયો હતો। कहानियां इतनी सारी सुनी थी, लेकिन अब आरती का वक्त होने लगा है, शाम ढलने लगी है, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसी चीज़ हमको दिखाई नहीं दी है जिसके बारे में ये कहा जा सके कि वाकई एक ऐसी चीज़ है जिसको देखकर हम सोच सकते हो सांप। ओ गॉड, ये सांप है। ये सांप है, कहाँ से आया है? ओह, ये तो मेरी तरफ ही घूम रहा भाई, कहां से आया ये? हटो हटो हटो, छोड़ो यार। મંદિરના ફર્શ પર કોબરા સાપ સરકી રહ્યો હતો। આ એક ડરાવનારી તસવીર, પણ ચમત્કારથી ઓછી નહીં। દાવો હતો કે મંદિરમાં સાપ આવે છે, પણ સાપ અમારી આંખોની સામે હતો। ये देखिए, ये सांप यहाँ पर मौजूद है मंदिर में, और ये नाग है। और ये मतलब मेरे पास अब लफ्ज़ नहीं है। मैंने मंदिर के बारे में सुना था कि इस मंदिर में हर तरफ सांप और बिच्छू हैं, और कहीं पे भी आप जाइए आपको सांप नज़र आ जाता है। लेकिन यहाँ पर जो देख रहा हूँ उसको मतलब मुझे नहीं पता अब किसके बारे में मैं क्या कहूँ या किससे कहूँ कि कौन क्या करेगा। ये सांप यहाँ पर है, कहाँ से आया है? શું આ તે જ સાપ છે જે શિવલિંગમાં પૂજા કરવા માટે આવે છે? શું તેનો સંબંધ તે જ ચમત્કાર સાથે છે? ખબર નહીં। આ નાગે તો અમારું મગજ ચકરાવે ચડાવી દીધું। ये नाग मेरे सामने और ऐसे बैठा हुआ है जैसे लग रहा है कि कैमरे के लिए या मेरे पास ही आने के लिए। देखिए, बिल्कुल मेरी तरफ ही चलता आ रहा है। मैंने देखिए सांप को हैंडल नहीं किया इतने करीब से, मुझे बहुत डर लग रहा है इस वक्त।
मैं और ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगा। ये सिर्फ इस वजह से मैं लगातार बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बता सकूँ कि मैं क्या देख रहा हूँ और क्या महसूस कर रहा हूँ, लेकिन मेरे लिए इम्पॉसिबल है कि मैं अब और कुछ भी कह पाऊँ। આવી સ્થિતિ માટે અમારી ટીમ એકદમ તૈયાર નહોતી. ક્યારેય આવી સ્થિતિથી સામનો પણ નથી કર્યો. આ તો કિંગ કોબ્રા હતો, એકદમ ઝેરીલો અને ખતરનાક. ये कोबरा है। कोबरे के बारे में सुना था, बहुत कम जगहों पर आपको कोबरा दिखाई देता है। ये किंग कोबरा है, किंग कोबरा है ये। और ये किंग कोबरा यहाँ मंदिर के प्रांगण में, ये मार्बल का फर्श है, यहाँ पर ये घूम रहा है। अब हटाइए इसको, हटाइए, किसी को बुलाइए, इसको बंद करवाइए, पकड़वाओ भाई इसको, ये किसी को काट लेगा, यहाँ पर बुलवाओ। અમારી ટીમ તો ગભરાયેલી હતી, પણ અહીંના લોકો પર કોઈ અસર નહોતી. તેમના માટે આ રોજની વાત હતી. પાસેના ગામથી એક મદારીને બોલાવવામાં આવ્યો. સાપ તો મંદિર વચ્ચે ફેણ કાઢી બેઠો હતો. ये अपने आप में इतना सरप्राइजिंग है कि मेरी आवाज़ भी इस वक्त नहीं निकल पा रही है। मतलब मैंने ये सोचा नहीं था कि सांप दिखाई देगा, और सांप में भी किंग कोबरा, मतलब जो का राजा कहलाता है सांपों का, जो शिव जी के गले में आपने जो तस्वीर देखी होगी उसमें आपको किंग कोबरा दिखाई देता है, ये वही किंग कोबरा है। ये किंग कोबरा कहाँ से आया है? ये पूरा मार्बल का फर्श है। एक एक जगह मैंने सुबह से देखी है, मुझे कहीं कुछ नहीं दिखाई दिया था, और अभी ये कोबरा जो है वो सामने निकल कर आ गया। मतलब अपने आप में मैं कह नहीं सकता हूँ कि मैं क्या बोलूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है इस वक्त। ત્યાં જ મદારી ત્યાં પહોંચ્યો. તે સાપને પકડવા લાગ્યો. फाइनली हमने एक स्नेक कैचर को बुलाया। इस इलाके में बहुत सारे स्नेक कैचर्स हैं, उनमें से एक को बुलाया है और वो इस सांप को पकड़ के ले जा रहे हैं। अब हम बाबा, ये खतरनाक है बहुत सांप, खतरनाक है किंग कोबरा। ये मतलब ये आबादी में तो कहीं होता नहीं है, ये कहाँ से आ गया होगा? जंगलों से लेकिन चला आया है। हाँ, जंगल से चला है। ये डस लेता है तो इंसान बचता तो नहीं होगा। काटने से 1 मिनट नहीं बच सकता। 1 मिनट नहीं बच सकता, तो आप इसको दूर लेके जाइए, ये मंदिर से इसको हटाइए। बहुत सारे श्रद्धालुगण हैं यहाँ पर। આ સાપ આ પટારામાં બંધ થઈ ગયો. અમારી ટીમ જે વિચારતી હતી તેમાંથી બહાર આવવું પડ્યું. હવે તે લાગી રહ્યું હતું કે મંદિરમાં ક્યાંય પણ સાપ હોઈ શકે છે. તેવામાં શિવલિંગની પડતાલ કરવી ખતરનાક છે. શું સાચે જ મંદિરની નીચે કોઈ ભોંયરું છે? શું આ સાપ ત્યાંથી જ નીકળીને બહાર આવ્યો હતો? શું હવે શિવલિંગ સાથે લપેટાયેલો સાપ પણ જોવા મળશે? फाइनली वो वक्त आ गया है जिसका हमको इंतज़ार था। यहाँ पर अब शाम ढल चुकी है, यानी कि वो वक्त जब मंदिर की आरती होने के बाद उसको बंद कर दिया जाएगा। अब ये देखिए, यहाँ पर श्रृंगार का काम जो है वो शुरू कर दिया है पंडित जी ने, जो मुख्य पुजारी हैं यहाँ पर। પહેલા શૃંગાર, પછી આરતી. પૂજારીના કહેવા મુજબ સવારે કપાટ ખુલશે, ત્યારે શિવલિંગ સાથે નાગદેવતા લપેટાયેલા જોવા મળશે. આવા પડકારોનો અમે પહેલા પણ સામનો કર્યો હતો. ઘડિયાળના કાંટાએ 3:30 વાગ્યાનો ઇશારો કર્યો. ગર્ભગૃહના કપાટ ખોલવાનો સમય થઈ ગયો હતો. પૂજારીના પહોંચતા જ નિર્ણય થઈ જશે. पंडित जी, आपने तो सुबह खोला है और आपने हमेशा ये कहा है कि आपको दिखाई देते हैं कभी कभी। हाँ, दिखते हैं हमको। आज जो मैंने देखा वो वाकई चौंकाने वाला था। मंदिर के प्रांगण में भी मुझको सांप दिखाई दिया, और अभी जब दरवाज़ा खुलेगा तब क्या होगा इसका मुझे नहीं पता है। लेकिन 3:30 बजे का वक्त है, कोई भी नहीं है सिवाय हमारे। आइए पंडित जी, खोलते हैं दरवाज़ा। જેવો પડદો હટ્યો, ओ गॉड, ओ ये देखिए सांप मौजूद है। उफ, ये शॉकिंग है अपने आप में। क्या बात है पंडित जी, ये क्या है? मतलब कि सर्प यहाँ पर बैठा हुआ है, कहाँ से आया? यहाँ कोई जगह नहीं थी।
भगवान का संस्थान है जी।